Vicky. I request all the participants to please keep their mics muted and maintain the decorum of the meet. A very good evening, everyone. I would like to inaugurate the session 2 by quoting Brian Tracy that welcome the challenges, look for the opportunities in every situation to learn and grow is wisdom. I, Kaumadi Singh, Assistant Professor, Department of Applied Science and Humanities, and a member of Training and Placement Cell, Faculty of Engineering and Technology, University of Lucknow, feel overwhelmed to commence the session 2 of training workshop on skills and behavior. Today's topic is strategies to be workplace ready, developing organizational behavior and conflict management. An organization, no matter how well designed, is only as good as the people who live and work in it. To inculcate that goodness within, we have with us today Mr. Shubham Kapoor, sir. I heartily welcome you, sir, to the today's virtual meet. Sir has done MBA from Christ University, Bangalore, and also worked for Byju's and Great Learning in past. Presently, Sir is working as an account development manager in Adobe North America zone. I welcome you, sir, and now present the forum to you. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. Can you guys see me? Yes, sir, we can see you.
Okay. Good evening, everybody. क्या यार मंडे है मुझे पता है बट इतना लो एनर्जी. Yes, good evening. Actually, all the participants are muted and they Okay. will only respond in the question and answer round. Okay. Else, they'll be present in the chat box section for reply, and the replies are coming. Good evening to you. I can see that. Good evening, everybody. Yes, Yeah. please go ahead. Hi. So as Ms. Kaumudi Singh actually introduced me, my name is Shubham Kapoor. Thank you so much for giving me this opportunity, ma'am, so that I could actually try to help. मेरा बहुत ज्यादा इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, क्योंकि आपके टीचर्स उनका एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा, they are much more qualified than me. But what I can do is I can give you a third eye perspective. कि corporate में क्या हो रहा है, because I've been working for more than 3.5 years now, and I am actually pretty much excited to share my insights with you, because college कौन नहीं मिस करता यार, सब मिस करते हैं. तो मैं भी करता हूँ, and मेरी सिस्टर है, she's in school right now. तो कॉलेज का एक बहुत बड़ा गैप हो गया है मेरी लाइफ से, तो आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे आई कैन एक्चुअली रिकलेक्ट सम मेमोरीज आप लोगों से बात करके. तो एज मैम स्टेटेड, आई बिलोंग टू लखनऊ नेटिवली. मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ समबडी इज अ नेटिव, वो जानता होगा CMS, बहुत 30 ब्रांचेस हैं लखनऊ में, सब जानते हैं. तो आई स्टडीड इन CMS महानगर, एंड देन आई वेंट ऑन टू डू माई मास्टर्स फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर. ठीक है. तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का MBA was something I wanted to do. मैंने 11th में ही साइंस ड्रॉप कर दिया था, नॉट बिकॉज साइंस मुझे समझ नहीं आता था या पसंद नहीं था, बट आई हैड माई ओन गोल्स एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि मुझे लीनियर ही जाना है, एंड आई वेंट अहेड विद दैट. तो कैंपस प्लेसमेंट मुझे मिला बायजूस में. आई वर्क देयर फॉर 1 year. देन आई वेंट ऑन टू अचीव a very good package in great learning, and वहां से I went on to work for Adobe right now, and I work as an account development manager. तो अकाउंट डेवलपमेंट मैनेजर, व्हाट डज ही डू? मैं एक इनसाइट दे देता हूँ. आई हैंडल नॉर्थ अमेरिकन मार्केट फॉर अडोबी. मतलब हाउ आई टेल, बेसिकली हाउ आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मैंने अडोबी में मिली है मुझे नौकरी, वो PDF वाली कंपनी है ना, उसमें. सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. ऐसे ही समझ में आ जाता है लोगों को. पीपल कॉल इट ओके. अब सब मिनट एक मिनिमम 1 करोड़ की प्लेसमेंट लेंगे इस सेशन के बाद. हाँ सिद्धार्थ, आई एम श्योर लेंगे आप. इफ यू आर क्वालिफाइड एनफ आपको जरूर मिलेगी, बहुत लोगों को मिलती है. तो आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम कि आपको नहीं मिलेगी. हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आई वर्क एज एन ADM, अकाउंट डेवलपमेंट मैनेजर, एंड आई हैंडल नॉर्थ अमेरिकन मार्केट. ठीक है. तो अब क्या है कि आई हैव डन माय MBA. वहां पे इन मैनेजमेंट यू आर बीइंग टॉट कि आपको किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से आप समझते हो चीजें, किस तरह से रिएक्ट करते हो. व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एजुकेशन, तो आप लोगों को हार्ड स्किल्स बहुत ज्यादा सिखाए जाते हैं, एंड विद द गाइडेंस ऑफ टीचर्स लाइक मिस कौमुदी सिंह, आप लोग सॉफ्ट स्किल्स पे भी वर्क कर पाते हो. तो जो मेरा मेन एजेंडा है आज यहाँ पे आपको ये बताने का है कि हाउ डू यू एक्चुअली कंडक्ट योरसेल्फ इन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब आप जाते हो और कैसे आप वहां पे अपने आप को उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स यूज करके अपने हार्ड स्किल्स से यू गेट बेटर अप्रेजल्स, बेटर प्रमोशंस गोइंग फॉरवर्ड. तो वो सब आपको आई कैन टेल यू एक्चुअली. ठीक है. तो यहाँ पे आई वुड एक्चुअली लाइक टू शेयर माय स्क्रीन. Yeah, can you guys see my screen? Chat में लिख दो. Yes, sir, we can see your screen share. Oh, great. Yeah. So what I felt, because I discussed this with ma'am, and therein we could actually come up with this topic जहाँ पे developing your organizational behavior and solving conflict management could be the best resource we could come up with, क्योंकि वही आपकी help करेगा going forward and staying in a company. तो कंपनी में बस नौकरी मिल जाना ही काफी नहीं है ना, आपको वहाँ पे स्टे भी तो करना है, बिकॉज इट इज अ होल कल्चर. जैसे आप फैमिली में रहते हो, आप अपने मम्मी या पेरेंट्स से डिसएग्री करके नहीं रह सकते, मम्मी से पापा से लड़के तो घर पे आप नहीं रह पाओगे ना. दैट इज हाउ इट वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. वहां का भी कल्चर होता है, वहां भी आपको एक कंडक्ट करना होता है अपने आप को एक तरह से, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है. So this will be our topic: strategies to be workplace ready, developing organizational behavior and conflict management. Now, talking about your own education background, आप सब technical education से हो. Ma'am told me there are people from BTech, MCAs, BCAs, सब तरह के बच्चे हैं. तो if we talk about latest job trends यहाँ पे, तो आप देखोगे
there's blockchain developer, there's artificial intelligence specialist, JavaScript developer, robotics and automation, customer success specialist, cyber security engineer, digital marketing expert, and lead generation specialist. So these are basically LinkedIn से है ये, ऐसे मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये LinkedIn के ट्रेंड्स हैं 2021 में जो लेटेस्ट जॉब ट्रेंड्स हैं इस टाइम पे करंटली इन इंडिया स्पेसिफिकली. तो आप सब टेक्निकल एजुकेशन से यू प्रीटी मच आर अवेयर व्हाट डज ब्लॉकचेन डू. आजकल क्रिप्टो का इतना ज्यादा बोलबाला है मार्केट में, आप देखोगे तो रिपल है, बिटकॉइन है, देयर आर डोजकॉइन है, इलॉन मस्क जो टेस्ला का ओनर है वो भी प्रमोट कर रहा है, एंड इंडिया अपना खुद का भी क्रिप्टो बना रहा है. तो ब्लॉकचेन इज देयर, एआई हम सब जानते हैं, वी आर ऑल प्रीटी मच अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी. देन जावास्क्रिप्ट है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कौन नहीं कर रहा है, सब कर रहे हैं राइट. स्पेशली पोस्ट कोविड आप हेल्थ केयर में देखोगे, आप फाइनेंस में देखोगे, आप एजुकेशन में देखोगे, हर जगह पे ऑटोमेशन है. देन व्हेन इट कम्स टू कस्टमर सक्सेस स्पेशलिस्ट, नाउ ये भी सेम जोन में आता है. देयर इज सेल्स, देयर इज मार्केटिंग. तो किस तरह से आप कस्टमर्स को अपने एक्चुअली हेल्प कर सकते हो टू अचीव देयर टारगेट्स एंड टू गेट द मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन. उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, आई एम श्योर हम सबको कॉल्स आते हैं स्कैम वाले कि आप लिंक पे कर दो और आप पैसे कट जाते हैं अकाउंट से, करेक्ट. तो जितने स्कैम बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ रही है उसको रोकने की, एंड देयर इन कम्स द साइबर सिक्योरिटी. डिजिटल मार्केटिंग, एवरीबडी नोज हम कितना इंस्टाग्राम चलाते हैं, कितना फेसबुक चलाते हैं, और वहां से ही हमारी हेल्प भी होती है टू एक्चुअली रीच आउट टू मोर एंड मोर कस्टमर्स, क्योंकि हमारा बेस बहुत बढ़ गया. अगर मैं लखनऊ में एक बिजनेस कर रहा हूँ तो शायद मैं 2000 लोगों तक पहुंच पाऊंगा, बट अगर मैंने वही इंस्टाग्राम पे डाल दिया है तो लखनऊ में रह के भी आई कैन रीच वर्ल्ड वाइड, तो मेरी ग्लोबल रीच बढ़ जाती है. देन देयर इज लीड जनरेशन, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि बहुत ही बेसिक अगर आपको बताऊं, आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो और उसके बाद आपको कॉल्स आने लगते हैं, पॉलिसी बाजार हो गया, बाइजूस हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो आपको आते हैं. दीज आर द लेटेस्ट जॉब ट्रेंड्स. अब यहाँ पे जाने के लिए व्हाट डू यू नीड? दो तरह के स्किल लगते हैं, एक हार्ड स्किल लगता है, एक सॉफ्ट स्किल लगता है. ठीक है, हार्ड स्किल यू आर ऑलरेडी लर्निंग, आई एम श्योर आप आगे भी सीखते रहोगे. अभी हो सकता है किसी का लास्ट ईयर हो, कोई अभी सीख रहा हो, द बिगिनर, एंड देन आप और सर्टिफिकेशंस भी करते हो. तो हार्ड स्किल इज समथिंग यू कीप ऑन लर्निंग ऑल योर लाइफ. बट अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ कि आपको ये पता है. व्हाई डू यू थिंक कि टीचिंग की इतनी ज्यादा डिफिकल्ट एक प्रोसेस है टू बिकम अ टीचर? मैम इज हरसेल्फ अ पीएचडी. कितनी मेहनत लगती है, कितनी पढ़ाई लगती है, क्यों? क्योंकि सबके बस का नहीं है कि उनको जो आता है वो आगे इम्पार्ट कर पाए, आपको बता पाए कि कितना आपको समझ में आया है, उनको जो पता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली, ऑफ कोर्स आपको पाइथन पता है, बट आप सामने वाले को कैसे बताओगे? कल को आप मैनेजर बनोगे तो अपनी टीम कैसे हैंडल करोगे? फॉर दैट यू नीड सॉफ्ट स्किल्स, और सॉफ्ट स्किल्स ही आपको लाइफ में आगे ले जाते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि जिस तरह आप अपने आप को कंडक्ट करोगे, जो आपका बिहेवियर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रमोशंस होंगे, आपके अप्रेजल्स होंगे, और आप आगे जाओगे लैडर में, कॉर्पोरेट लैडर में. अब these are the trends जहां पे recent trends हैं, जहां पे hard skills ये लगे हैं और soft skills ये लगे हैं. तो top 10 hard skills इस टाइम पे again blockchain, cloud computing, analytical reasoning, AI, UX, business analysis, affiliate, ये सब मैं आपको बताऊं, अब आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बहुत सारे क्वालिफाइड टीचर्स आपको सिखा सकते हैं, आप ये हार्ड स्किल्स सीखते जाओगे एजुकेशन में. बट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट स्किल्स, कोलैबोरेशन हो गया, अडेप्टेबिलिटी हो गया, अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लें, तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हो अपनी कंपनी में जाके जब आप जॉब करते हो, जब एक सिचुएशन आपके अगेंस्ट जाती है, दैट इज अडेप्टेबिलिटी. आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है कि अगर आपकी एक मैनेजर से अपने नहीं बन रही है तो क्या आप उसे लड़ने चले जाओगे? नहीं, वो भी नौकरी करना है, आप भी नौकरी करने आए हो, तो आप उसको रिजॉल्व करोगे ना, तो उसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस लगती है. देन देयर इज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी, आई थिंक ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं लगती, और वो जब से आप पैदा होते हो और आपके लास्ट ब्रेथ तक वो आपके काम आएगी, और हर स्किल में आती है. तो दीज आर द एक्चुअली टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स जिसके थ्रू आप ग्रो करते हो. अगर आपको ब्लॉकचेन आता है और आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हो कल को, हाउ वुड यू कंडक्ट योर टीम? आप किस तरह से उनको समझाते हो, किस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स आप उनसे पूरे करवाते हो? क्योंकि काम मैं आपको बता दूं, आप जाओगे अप द लैडर, काम कराना बहुत मुश्किल है. आप अकेले अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप दे रहा हूँ कि ये असाइनमेंट बना दो, आप कर लोगे, बट आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हो ना, जहाँ टीम वर्क की बात आती है, वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, और जब आप एक टीम के साथ काम करते हो, दैट एक्चुअली इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स कंपैरेटिवली. तो उसके लिए यू नीड सॉफ्ट स्किल्स, और उस पे ही हमें काम करना है. एंड कम्युनिकेशन व्हिच इज टू वे, दैट इज अ वेरी कोर पार्ट ऑफ योर इंटरपर्सनल स्किल,
जहाँ पे सॉफ्ट स्किल comes in handy, and for that ma'am is of course helping you. Now what is organizational behavior? बहुत self explanatory है. Organizational behavior is the study and application of knowledge about how people act within organizations. क्योंकि अगर आप एक घर पे रहते हो, आपको पता है कि बहुत लोग अपने फादर से डरते हैं, बहुत लोग अपनी मदर से डरते हैं, दादा से डरते हैं, दादी से डरते हैं. एक तरह का अथॉरिटी होता है घर पे, करेक्ट? एंड एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है कि आपको इस तरह ही एक्ट करना है. तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ना, वहां पे भी स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है. हम सब एंड्रॉइड भी चलाते हैं, आईफोन भी चलाते हैं, विंडोज, आप कुछ भी करोगे ना तो वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का आता है. जब आप अग्रीमेंट, वो आता है ना, जब आप डाउनलोड करते हो कोई सॉफ्टवेयर, व्हेन यू आई अग्री, तो उसके जितने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप सबको आपको फॉलो करने पड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. वही ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी होता है. आप एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं. दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, आपसे क्या उम्मीदें हैं, और आप किस तरह से अपने आप को वहां पे कंडक्ट करोगे. नाउ इफ यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसके क्या होते हैं, ओबी बोलते हैं इसको. कॉमर्स स्टूडेंट्स आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट. ये बिहेवियरल अप्रोच है मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, कि आपका किस तरह का बिहेवियर है, आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो, और किस तरह से मैनेजमेंट में इम्प्लाई कर रहे हो. दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. उसके बाद कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप है. तो कुछ सुपरफिशियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि आप जो जिस तरह से आप बिहेव करते हो उसका एक इम्पैक्ट है और उसका एक अफेक्ट भी है. अगर कल को मैं अपने सबऑर्डिनेट जो मेरे नीचे काम कर रहा है, अगर मैं उससे गाली देके बात करूंगा, तो उसका मोटिवेशन जाएगा काम करने का. तो अगर मैं एक कॉज प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी तरफ से, तो उसका एक अफेक्ट भी होगा. नाउ अगेन इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेस व्हिच ऑफ कोर्स इंक्लूड्स एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हर तरह से ये है. एक बोलते हैं ना बहुत फेमस कैरेक्टरिस्टिक, हर चीज का ही पढ़ोगे, इट इज इन आर्ट एज वेल एज साइंस. ये वही है. बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिसपे रिसर्च हुई है, और उसके बाद जाके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बना है. क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, कितना बहुत मुश्किल है. बहुत सालों से हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं और अभी तक कोई समझ नहीं पाया है एक दूसरे को जिस तरह से हम करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप बात कर रहे हो, तो आप किस तरह से, अगर एक स्टैंडर्ड नहीं है प्रोसीजर, तो आपको समझ में ही नहीं आएंगी चीजें. दैट इज वाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन और बहुत सारे नॉलेज के बाद दिस has become a branch of social sciences. Then it is beneficial to both organizations as well as individuals. अब अगर मेरी कंपनी का कल्चर अच्छा है, तो मैं काम करूंगा कंपनी के लिए, आई बी मोटिवेटेड, तो कंपनी का भी भला हो रहा है, और कंपनी भी मुझे वैल्यू करेगी कि अच्छा, ये अच्छा एम्प्लॉय है, इज मोटिवेटेड टू वर्क मोर, और वैल्यू भी ऐड कर रहा है. तो दोनों का फायदा होता है. देन यू बिकम रैशनल. एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अगर आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो, तो आप अपने मैनेजर को थप्पड़ नहीं मारोगे. यू विल थिंक रैशनली कि क्या मैं एचआर से बात करके इसका सोल्यूशन निकाल सकता हूँ. बिल्कुल हाँ, बात करके तो किसका सोल्यूशन नहीं निकलता, सब चीजों का निकलता है. और वही थिंकिंग आपके अंदर आनी चाहिए एज अ सॉफ्ट स्किल जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो. क्योंकि सब कुछ आपके कंट्रोल में कभी भी नहीं होगा. मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर होंगी, और वो आप कैसे टैकल करते हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस की क्यों इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत हेल्प करता है आपकी. क्योंकि अगर आप सही से सोच ही नहीं पा रहे हो, अगर आप सक्षम ही नहीं हो सोचने के लिए, देन हाउ वुड यू एक्चुअली टेक डिसीजंस, वो भी इफेक्टिव. अगर आपको कल को अपनी टीम के बिहाफ पे कॉल लेना पड़ा और आपका माइंड उतना मैच्योर ही नहीं है, तो आपका प्रोजेक्ट सैक्रिफाइस होगा, आपकी टीम सैक्रिफाइस होगी, और आपका काम सैक्रिफाइस होगा, और आपको गाली भी पड़ेगी ऊपर से. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जहां पे आपका डिसीजन मेकिंग बेटर होगा गोइंग फॉरवर्ड, इसके बिहाफ पे ही. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल. अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ग्रोन अप एज एन इंट्रोवर्ट, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मैं बात नहीं कर पाता था. तो बहुत सारे आप लोगों में से होंगे लोग जो बहुत ज्यादा बोलते होंगे, जो बहुत रिजर्व्ड होंगे, जो शाय होंगे. तो अगर मेरा एक एम्प्लॉय है जो शाय है, तो वो बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर नहीं कर पा रहा है, तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा ना. मुझे समझना पड़ेगा कि ही इज अ शाय पर्सन एंड ही माइट नॉट कम टू मी एंड शेयर हिज प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ. तो उसको हमें टैकल करना पड़ेगा अलग तरीके से, और वो एक्चुअली सही मायने में बोला जाए तो हमें उससे पूछना पड़ेगा कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है. क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी, आपकी उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आपकी कंपनी में कोई आए और वो पूरा जो 25-26 साल से वो पूरा इंसान बदल जाए. नहीं बदल पाएगा. तो दैट इज व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल, एंड दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई ओबी इज इंपॉर्टेंट. देन यू हैव टू बी नेविगेटिंग वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स.
कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं, ठीक है। आपके डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपको एचआर बोल देगा कि आप मतलब, सबको ही पता है कि बहुत फेमस जोक है ना कि एचआर रंगोली बनाते हैं, बट दैट इज नॉट इट। वो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर आपकी टीम में कोई बहुत ज्यादा आपस में बनती नहीं है, तो एटलीस्ट एक्टिविटी के वहां से आइस ब्रेक हो जाए, बात करने लगे, समझने लगे, तो कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए। तो वो आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली रोज मुंह देखना है ना जाके। बहुत प्रैक्टिकल बात है, आपको रोज जाना है, आपको रोज मिलना है, रोज साथ में काम करना है, तो आप ग्रजेस लेके कहाँ तक चले जाओगे? यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ actually resolving your workplace conflicts. Then if I am motivated, if मेरा बिहेवियर अच्छा है, कंपनी का मेरी तरफ बिहेवियर अच्छा है, तो मेरा परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव होगा, मुझे काम करने का मन करेगा। अब इमेजिन करो ना कि अगर कोई टीचर है, बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा है, उनकी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, तो आप उनकी क्लास में जाते भी हो, आप सुनते भी हो, आप नोट्स भी बनाते हो और आपका मन भी लगता है। और कोई टीचर हो सकता है, और ये कंप्लीटली पर्सनल चॉइस है, कोई टीचर आपको बहुत ज्यादा नहीं पसंद आता हो, कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप अपने आप उसमें नहीं पढ़ोगे, एंड विच विल ऑफ कोर्स अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। एक में नंबर ज्यादा आएंगे, एक में कम आएंगे, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट कम्स विद मोटिवेशन। देन हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। अब ये तो किसको ही नहीं पसंद है। अब मैं जा रहा हूँ और मेरी रोज अगर लड़ाई हो रही है अपने मैनेजर से, तो मैं क्यों जाना चाहूंगा? तो ये तो किसी को भी नहीं पसंद आएगा, करेक्ट? इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, एंड दैट कम्स अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका और कंपनी का अच्छा है तभी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो ये कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ी बात तो क्या है कि यहाँ पे ऑफ कोर्स देयर आर मेन एंड वुमेन प्रेजेंट हियर, दोनों ही है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं। और बहुत बार होता है कि आपकी मतलब घर पे ही मान लो आपको, अब मुझे जैसे 8th में मेरे को साइकिल लेनी थी, तो डैड नहीं मान रहे थे, पहली बार में नहीं मान रहे थे, और मैंने बहुत आई हैड टू कन्विंस हिम बहुत ज्यादा। तो ये तो होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर जगह पे होंगे, आपके घर पे भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आप सोचते हो वैसे सब नहीं सोच सकते ना, सबका अपना पर्सपेक्टिव है। क्योंकि मेरे डैड को लग रहा है कि अभी जरूरत नहीं है, और मुझे लग रहा है कि मुझे चाहिए, मैं रिक्शे से जाता था स्कूल। तो बहुत सिंपल सी बात है कि दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सबका अपना नजरिया होता है और आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल बाउंड्री में जाते हो, तो हो सकता है मुझे लगे कि ये काम 2 दिन में हो जाएगा, आपको लगे 3 दिन में हो जाएगा, और बहुत छोटा सा डिसएग्रीमेंट है और बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर मैंने वो ग्रज ले लिया अपने अंदर, तो मुझे लगेगा कि नहीं, अरे ये तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, या ये मेरी कभी बात नहीं सुनता है। दैट इज हाउ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट हैव कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग ईच अदर। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बहुत कोर पार्ट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज एक्चुअली द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई एंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट सेंसिबली। तो अब देखो, 2 तरीके हैं, या तो आप मुक्का मार दो, है ना, जो साथ में कोवर्कर है कि मेरी बात नहीं सुन रहा है, और या तो आप एक्चुअली उनसे बैठ के फेयरली और सेंसिबली डिस्कस करो कि प्रॉब्लम क्या है और आप उसको किस तरह से रिजॉल्व करते हो। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे, आई थिंक अभी कितने 100 लोग हैं, ठीक है, मुझे मिला के, मैम को मिला के, तो 100 लोगों में से किसी का भी ये रिएक्शन तो नहीं होगा कि मैं चलो मार के इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स इफ यू एक्चुअली वांट टू वर्क एंड ग्रो इन अ कंपनी। क्योंकि ये तो बहुत आसान सोल्यूशन हो गया ना, ये तो आप मारते जाओगे, कहाँ तक जाओगे? तो वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। यू हैव टू डिस्कस इट लाइक अडल्ट्स, आपको उसको रिजॉल्व करने पड़ेंगे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो एंड गो अप द लैडर, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्टाइल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो बहुत सारे होते हैं, देखो सबका अपना तरीका होता है। सो इफ यू टॉक अबाउट कंपीटिंग, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पार्टी सीक्स टू सेटिस्फाई द इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अदर पार्टी। तो कंपीटिंग बहुत खुद को एक्सप्लेन कर रहा है। होता क्या है कि अब मैं और आप हैं, मैं आपका मैनेजर हूं, या हम दोनों सेम टीम में हैं, हम compete कर रहे हैं, ठीक है। तो compete करने में मतलब मुझे जीतना है आपसे, तो मैं आपके जो गोल्स हैं उनको सैक्रिफाइस करके अपना गोल या टारगेट अचीव कर लूंगा। बट क्या ये बेनिफिशियरी है? नहीं है। टारगेट अचीव हो गया, बट वो कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया ना, और वो तो रिजॉल्व भी नहीं हुआ। तो एक ये तरीका है विच इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। एक है कोलैबोरेटिंग, जहां पे दोनों पार्टीज जीतती हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एक होता है अकोमोडेटिंग। अब जैसे अगर कोई आपका मैनेजर है जो बहुत अच्छा है, या कोई टीचर है, तो आप बोलते हो ना, आप डेडलाइंस एक्सटेंड करवा लेते हो बोल के, और वो कर भी देते हैं, बिकॉज टीचर्स आर नाइस जनरली। तो वो ऐसे डेडलाइंस एक्सटेंड कर दी, या बहुत ज्यादा आपको लेवरेज दे दिया, थोड़ी सी लीनियंट चेकिंग कर दी, तो ये अकोमोडेटिंग स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है, कि उनको भी पता है कि आप क्या कर रहे हो, बट स्टिल दे एक्चुअली हेल्प यू विन, कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा डेट ही एक्सटेंड करनी पड़ेगी, एंड दैट इज हाउ मैनेजर्स आल्सो ऑपरेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
नाउ एक होते हैं अवॉइड करने वाले, ठीक है। अब ये आप भी हो सकते हो कि मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसे अब मुझे पता है कि मुझे मैथ्स नहीं आते लेकिन मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा, अरे कहाँ है प्रॉब्लम, तो वो भी है। और आपको ऐसे मैनेजर्स मिलेंगे जो वो विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, जो सामने अपर अथॉरिटी को ये बताते हैं कि सब सही है और पीछे से चाहे स्ट्रक्चर बिगड़ा हो, तो ऐसे भी मिलेंगे। आपको वो देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से उस पॉइंट पे रिजॉल्व करते हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द बेस्ट स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। तो ये तो देखो आपको करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंडशिप में भी आ जाओगे, आप रिलेशनशिप्स में आ जाओगे, आप पेरेंट्स से आ जाओगे, तो दोनों पार्टीज जीतेंगी तभी जब एक स्टेप मैं लूंगा, एक स्टेप आप लोगे। तो इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करता है कि आप कितना ज्यादा सैक्रिफाइस कर सकते हो सामने वाले के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली अगर मुझे और मेरे मैनेजर को साथ में काम करना है तो एक ही पेज पे रहना पड़ेगा। अगर हम एक साथ ही नहीं काम कर पा रहे हैं तो हम एक गोल कैसे अचीव करेंगे, और हार्मनी कैसे होगी कंपनी में, और मैं कैसे मोटिवेटेड होऊंगा, मेरा मैनेजर मुझे पसंद कैसे करेगा, मैं उसका मुंह कैसे पसंद करूंगा। तो ये सारी चीज उस पर डिपेंडेंट है कि हम कितना कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। क्योंकि हमें भी तो समझना पड़ेगा ना कि सामने वाले का पॉइंट क्या है, वो भी फेयरली एंड रैशनली। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए है, तो यहाँ पे है क्या कि फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट है क्या। ये नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया आके कि अच्छा सुनो ये तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। ये होता है ऑफिस पॉलिटिक्स में, बहुत होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने स्कूल चेंज किए होंगे, है ना। आप कभी कभी लेट जाओगे, आप कहीं, अब मान लो 6 स्टैंडर्ड में आप आए हो, तो वहां से बहुत सारे लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं बचपन से, तो उनकी आपस की जो बॉन्डिंग होती है बहुत अलग होती है। तो आप जब वहां पे पहुंचते हो तो आपको लगता है कि आप कहाँ गए, आप नई जगह पे आ गए। तो पॉलिटिक्स का भी आप, और ये होगा वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स होती है, ये मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता रहा हूँ, हर जगह पे है। ऑफिस पॉलिटिक्स इज अ जेन्युइन थिंग, ठीक है। तो अब जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अलग है और वो बायसनेस भी आती है, ह्यूमन नेचर है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इट कि आप कितना ज्यादा उसके बारे में सेंसिबली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हो रिएक्ट करने से पहले, विच विल हेल्प यू एक्चुअली रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। तो ये नहीं होगा कि अगर मेरे को किसी ने बोल दिया है कि अच्छा फलाना तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था, तो मैं उससे एक्चुअली मुंह बना लूं या डिसएग्री कर जाऊं या उसका काम ना करूं। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको प्रोफेशनली चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। देन यू हैव टू टेक अ वेरी रैशनल अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अगर आप रैशनली चीजों के बारे में सोच नहीं रहे हो, फिर तो आप बच्चे हो, फिर तो आप नौकरी करने बहुत जल्दी आ गए हो, बहुत ही ब्लंटली मैं बोलूंगा। क्योंकि अगर आप अर्न कर रहे हो ब्रेड अपनी लाइफ के लिए, कल को आप करियर प्रोग्रेशन में आगे जाओगे, आप करो, आप पेरेंट्स का भी ध्यान रखोगे, आपकी एज भी हो जाएगी धीरे धीरे, तो आप अगर सोच ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो चीजें ठीक से, तो क्या पॉइंट है। तो वो तो आपको अपने अंदर इम्बाइब करना पड़ेगा कि आप कितना ज्यादा सेंसिबली चीजों को अप्रोच कर पाते हो। और मैं आपको एक्चुअली अश्योर कर सकता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है ना, वो खाली ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम नहीं आएगा, वो कंपनी के बाहर भी आता है। ये सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं। किस तरह से आप अपने आप बिहेव करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका सेकंड नेचर बन जाता है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने मैनेजर का भी जो नजरिया है वो समझो, तो अपने दोस्त का भी समझोगे जब आप कंपनी के बाहर स्टेप आउट करोगे। तो ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप करता है ओवरऑल। ये खाली नोट्स नहीं है जो मैंने आपको बना के बुलेट्स दिखा दिए हैं। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन लाइफ एज वेल एज इन कंपनीज। देन इफ यू टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग द सिचुएशन, तो अगर आप तह तक नहीं जा रहे हो जो प्रॉब्लम है, अगर मेरी, मान लीजिए कि मिस कौमुदी सिंह से कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं वो रिजॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं जाके बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूँ सिचुएशन, तो क्या पॉइंट है। कुछ पॉइंट नहीं है। ऐसे तो मैं ग्रजेस रखा रहूंगा, वो भी काम करते रहेंगे, मैं भी काम करता रहूंगा, और वो कोल्ड वॉर चलता रहेगा। तो वो आपको करना पड़ेगा। देन यू हैव टू डिसाइड कि अब यहां से क्या है, हाउ टू टैकल द कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि दिस इज व्हाट मैच्योरिटी डज टू यू, कि आपको एक सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक पॉइंट पे। आप शायद अपनी पहली जॉब में नहीं कर पाओगे, बट दूसरी में, तीसरी में, जैसे जैसे आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप सीखने लगोगे। देन लेट एवरीवन हैव देयर से। क्योंकि अगर आप सामने वाले की सुनोगे ही नहीं और अपनी ही बोलोगे, फिर तो हो चुका, फिर तो कहीं पे भी नहीं। फिर तो बहुत इजी है आपके डैड के लिए भी आपको डांटना, फिर बहुत इजी है आपके मैनेजर के लिए भी डांटना, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हो। तो जो सुन नहीं रहा है वो समझ नहीं रहा है, जो समझ नहीं रहा है वो कर नहीं रहा है। बहुत सिंपल बात है। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑप्शंस एंड अग्री ऑन अ वे फॉरवर्ड। नाउ हियर कम्स जो हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज। अगर आप ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर लोगे एक बार, ठीक है, और अग्री कर लोगे एक वे फॉरवर्ड में, तभी तो आप कॉम्प्रोमाइज करके और एक एक जो सिंगल गोल है आप लोगों का अचीव करने का, वो कर पाओगे।
अगर मैं इस टाइम पे करेंटली मान लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, तो मेरा गोल तो यही है ना जो मैम का है कि यूनिवर्सिटी का अच्छी से अच्छी बेस्ट एजुकेशन दे पाऊँ, जितने बच्चे हैं उनकी अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट्स हो। सबका गोल तो एक ही है, जितने लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरा अलग है और मेरे मैनेजर का अलग है, सबका सेम है। सो दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये थ्योरी है जो मैं आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर करना चाहता था। बट माय पॉइंट इज यहाँ से कि आप कितना ज्यादा अपने ऊपर काम कर पाओगे। ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जब भी प्लेसमेंट में बैठेंगे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको पाइथन कितना आता है। ऑफ कोर्स उसके बेस पे आपको नौकरी मिलेगी, बट टू सर्वाइव यू नीड सॉफ्ट स्किल्स। अगर आप एचआर को बता ही नहीं पाओगे इंटरव्यू में कि आपको कितने अच्छे से आता है, और आप समझा ही नहीं पाओगे अपनी टीम को कि इस प्रोजेक्ट पे इस पर्टिकुलर तरीके से काम करना है, तो फिर कैसे करोगे आप? वो आपकी ग्रोथ रोकता है। इसलिए हार्ड स्किल्स पे तो आप काम करोगे ही करोगे, ये तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपके हो जाते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं और सब कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बैचमेट्स भी कर रहे हैं बहुत सारे जो थे। तो एज एंड व्हेन यू ग्रो, मुझे भी पाइथन आता है, मुझे टैब्लू आता है, तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता चीजें, मुझे भी पता। और मेरे करंट वर्क रोल में आपको बताऊं, पाइथन का कोई भी रोल नहीं है। बट अगर मैं कल को कोई जॉब चेंज करता हूँ तो क्या मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं है, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, मैं 11th-12th कॉमर्स से किया है, उसके बाद मैंने बीबीए किया, फिर मैंने एमबीए किया है। तो हार्ड स्किल्स तो आप सीख ही रहे हो, बट आपको ये भी मान के चलना पड़ेगा क्योंकि अब डिजिटलाइज इतनी ज्यादा हो गई एजुकेशन कि सब कर रहे हैं। अब कॉमर्स वाले भी कर रहे हैं, अब आर्ट्स वाले भी कर रहे हैं, अब सब कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो इस कॉम्पिटिशन। पहले ये होता था कि बहुत सारे इंजीनियर्स एमबीए करते थे आके, तो हमें लगता था कि अरे इंजीनियरिंग के बच्चे आ गए एमबीए करने। बट अब कॉमर्स वाले आपकी फील्ड में जा रहे हैं, बिकॉज नाउ व्हाट इट टेक्स, अपग्रेड है, ग्रेट लर्निंग है। व्हाट इट टेक्स कि आप एक कोई कोर्स कर सकते हो, 1 साल का प्लेसमेंट भी मिल जाती है आपको, और फिर आप उसमें करियर बना सकते हो। तो अब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया टू मेक अ करियर ऑन टर्म्स ऑफ योर हार्ड स्किल। बट सॉफ्ट स्किल कितनी ज्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रो करोगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। एंड दैट इज व्हाट मेक्स यू वर्क प्लेस रेडी। बस ये नहीं होता है कि अच्छा मेरे 85% मार्क्स आ गए हैं तो मैं अब मुझे एलिजिबल हूँ और मैं जाके बात कर लूंगा। इंटरव्यू में बैठने के तो इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए ना। बहुत सिंपल बात है। अब मैं अपनी बात करूं, बीइंग अ वेरी एवरेज स्टूडेंट ऑल माय लाइफ, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं नहीं था टॉपर, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। और जो हार्ड स्किल है जितनी मैंने सीखी है, उससे ज्यादा मैं सॉफ्ट स्किल्स पे काम करके जहां पे भी मैं हूँ बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल्स हूँ अभी करेंटली। बिकॉज मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, शायद अगर मैंने बीटेक करी होती तो मैं दोनों को यूज करके और एक बेहतर पोजीशन पे होता। बट इफ सॉफ्ट स्किल अलोन कैन एक्चुअली हेल्प यू रीच अ गुड प्रोफेशन, तो आप सोचो कि आपके पास तो और बड़ा यूएसपी है, जहाँ पे आपको इतने सारी चीजें भी आती हैं टेक्निकल, वेर इन प्रोबेबली किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट होगा, किसी को एमएल में होगा, किसी को एनालिटिक्स में होगा। आप वो अप्लाई करके कहाँ जा सकते हो? आप ये सोचो। आप अच्छे मैनेजर हो और आप अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर भी हो, व्हाट एल्स डज अ कंपनी वांट? आप 2 लोगों की काम कर रहे हो अकेले, तो 2 लोगों की सैलरी भी लोगे ना। बहुत इजी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हो टेक्निकल एजुकेशन पे तो आपको लग रहा है कि इसके थ्रू जॉब मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। बट टू ग्रो इन अ कंपनी आपको फोकस करना पड़ेगा अपने आपकी पर्सनालिटी पे, कि आप कितना ज्यादा समझते हो चीजों को, कितना सिचुएशंस को हैंडल करते हो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है। क्योंकि वो तो आएंगी, प्रॉब्लम्स हर जगह पे आएंगी, बहुत बेसिक है। तो ये कोई बहुत ज्यादा मैं आपको ज्ञान यहाँ पे नहीं देने आया हूँ। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मैं वैसे ही ऑपरेट करता हूँ, और मैं उतना ही आपको बता सकता हूँ कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो बहुत कंपटीशन है और आराम से कर सकते हो चीजें। जिस स्पेस पे चल रहे हो उस स्पेस पे भी चल सकते हो, या कैचअप भी कर सकते हो, क्योंकि दुनिया तो भाग रही है मेरे दोस्त, बहुत तेज भाग रही है। और अगर उसमें आप अडेप्ट नहीं करोगे अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रहोगे, बिल्कुल रहोगे। इनफैक्ट अगर आपको एक्चुअली देखना है ना, आप लिंक्डइन पे ट्रेंड्स देखना, 43% हाइक है टेक्निकल आईटी इंडस्ट्री में हायरिंग का इस टाइम पे, पोस्ट कोविड ये है। तो इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, जीडीपी भी बूस्ट हो रही है, और हायरिंग भी बूस्ट हो रही है। और रिमोट है, बहुत सारी कंपनीज खोल ही नहीं रही है। मेरा 2 साल से कंपनी नहीं खुली है जब से कोविड स्टार्ट हुआ। मैं आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो ये बहुत सारी कंपनीज का, तो आपको अगर ऐसा इस डिजिटल एरा में
अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पे आप टेक्निकली ऑलरेडी बहुत साउंड हो, तो आपको बस अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है एंड यू विल बी गुड टू गो. तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम एज टू व्हाई एनी ऑफ यू विल नॉट सक्सीड. बहुत ज्यादा चांसेस हैं और करोगे तो हो भी जाएगा. आई एम प्रीटी श्योर. तो दैट इज ऑल आई वांट टू से. बहुत ज्यादा आई वोंट ईट योर टाइम अप, क्योंकि मंडे इवनिंग है. मैं समझता हूँ, मुझे मंडेज नहीं पसंद है, बट had to come for you people and I'm glad कि मैं जितना भी मुझे पता है मैं शेयर कर पाया. बाकी I'll be more than happy to share my insights. आगे कोई questions हो अगर तो ma'am, you can actually open the forum now. Thank you so much, sir. Now I'll request the students to please raise your hands. As I commence the question answer round, we have first question from Priyanshu Verma. Okay. You could please unmute yourself, Priyanshu, and go ahead with your question. Or else you'd also type it in the chat box. Yes, Kartikeya, you could also unmute yourself. सर जी बताइए. गुड आफ्टरनून सर. गुड इवनिंग. सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है सर, जैसे पढ़ाई में, तो सर क्या करें उसके लिए? ठीक है. कौन सी ईयर के स्टूडेंट हो आप? He is from first year. अच्छा, तो अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है यार. अभी इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने लगोगे तो डिग्री कैसे खत्म करोगे? तो ये तो आपको खुद से देखना है ना कि आपको करना. अगर पढ़ना है तो पढ़ोगे, नहीं पढ़ना है, अगर मैं आपको कुछ बता दूंगा कि एक काम करो, हनुमान चालीसा पढ़ो और उससे बहुत अच्छा आपका ध्यान लगेगा, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ये तो आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप डिग्री करने आओ तो आप सोच के आओ ना कि मुझे बीटेक कंप्लीट करनी है. एक्ट लाइक अ स्टूडेंट यू आर. And there are various actually distraction mitigation mechanism. And for that, you need to be very focused on the Yeah. target. And of course, being self-driven is the main agenda. Yeah. And everyone has to be self-driven. And if you have opted for a course like BTech or BC or MCA, being self-driven, self-motivated is the basic requirement or a requisite, if I could state. And everyone should have an ambition that I want to become this and that, be it an engineer, or if you want to crack UPSC or any other examination, be it army or Air Force, anything of your choice. But as a teacher and in the presence of Mr. Shubham Kapoor, sir, I would only say that sir has stated about the importance of soft skills in a manner that being well dressed, groomed, working on your behavior and skills will take you a long way. Okay, Kartikeya? So please be self-driven, make one ambition of yours and work on that. Next, we have a question from Ashutosh Kumar Gupta. Please unmute yourself, Ashutosh. Ma'am, good morning, sir. Oh, good evening, sir. Good evening. Sir, what type of soft skill we have to develop in ourselves to look smarter? ठीक है. तो फर्स्टली आपको आप डैड से कुछ चीज मांगते थे बचपन में अपने फादर से कि आपको नए कपड़े चाहिए, नई साइकिल चाहिए, करते होगे आप बचपन में, हम सब करते हैं. आई कांट हियर यू. Yes, sir. हाँ, करते होगे. तो आप कन्विंस करते थे उनको, बात करके Yes. करते थे, करेक्ट? तो Yes. सबसे इम्पोर्टेंट तो कम्युनिकेशन है कि आप कम्युनिकेशन पे कितना काम करते हो, और इंटरपर्सनल स्किल है ये. आप मिठाई खाते हो? Yes, sir. ठीक है. कम मीठा खाते हो या ज्यादा मीठा खाते हो? कम मीठा. ठीक है. अब देखो, एक होता है अगर आप यहाँ पे बोल देते, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप स्वीट्स खाते हो, आपने बोला, अगर आपने बोल दिया होता नहीं खाता, या आपने बोल दिया हाँ, तो यहाँ पे बात खत्म हो गई है. ठीक है, खाते हो, बढ़िया है. बट मैंने आपसे पूछा आप कम खाते हो ज्यादा खाते हो. ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. तो ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड में फर्क होता है. तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन पे अपने वर्क कर सकते हो कि आप कितना ज्यादा एक्चुअली यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो इसमें फर्स्टली ऑफ कोर्स देखो, मैं बहुत ज्यादा बीन
born and brought up in Lucknow, और मैं हिंदी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ लैंग्वेज, बट इस टाइम पे अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो तो यू नीड टू फोकस ऑन योर इंग्लिश एज वेल, और वो स्पोकन बहुत अच्छी हो, और क्योंकि है जरूरत, मतलब आई एम रियली सॉरी कि मतलब यही सिचुएशन है, बट यही सच है कि आपको इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि वही नेशनल लैंग्वेज इस टाइम पे बन गई है इन कॉर्पोरेट कल्चर। तो आप कम्युनिकेशन पे काम करिए, आप पढ़िए, आप रीड बहुत करिए। अगर आप एक बार रीड करोगे, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। आप बात करने की कोशिश करिए, पेरेंट्स बचपन से बोलते हैं आप आपस में बात करो, आप वो करो, इट वर्क्स। तो दैट इज वन। और दूसरा, दूसरे को भी समझो। हमेशा ये नहीं करना है कि खाली मेरा नजरिया क्या है या मेरा परसेप्शन क्या है। आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आप वैसे ही रिएक्ट करोगे और उतना ही बेहतर बात भी कर पाओगे। Thank you so much, sir, for your answer. Next, we'll take up the question from Akriti Singh. Please unmute yourself, Akriti, and go ahead with your question. Good evening, sir. Firstly, thank you so much for such a wonderful session. My question to you is that how can we actually work on our soft skills and how can we boost it actually? Okay, so firstly you have to make sure to understand what kind of soft skills do you actually have already. ठीक है, if one kind of soft skill is persuasive, ठीक है, तो आप अगर बहुत ज्यादा you are able to communicate with people very well, you are able to express yourself बहुत ज्यादा अच्छे से, and your parents understand or your friends understand, आप advices में बहुत अच्छे हो, because you seem to me as a very soft spoken person. ठीक है, तो अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो अच्छे से कहीं पे भी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि और क्या क्या है। तो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस एक होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपको पहले अपने स्ट्रेंथ लिस्ट करने पड़ेंगे, अपने वीकनेस लिस्ट करने पड़ेंगे, एंड देयर ऑन यू कैन वर्क ऑन इट। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, विच मीन्स आप एक्सप्रेस बेहतर कर सकते हो, ठीक है, देन इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग आपको अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए और ज्यादा अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू एक्चुअली डू इट। बिकॉज अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आप समझ नहीं रहे हो चीजें, एंड इफ यू आर एबल टू, somebody is sharing the screen and writing hi, who's it? Yeah, ma'am. Yes, we could hear you, sir. Yeah, We can have disabled the screen share option, sir. Yes. Yeah. So Akriti, coming back to the point, you have to work on your communication skills. You have to work in terms of soft skills. Firstly, आपको अपने प्रेजेंटेशन पे काम करना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हो सोशली, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट एंड योर पर्सनालिटी गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप एक्चुअली इफ यू गोइंग इन एन इंटरव्यू, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज तक नोटिस होती है। इतना भी नोटिस होता है बिकॉज I'll tell you, there's an interview etiquette that if a man is going to an interview, he cannot sit cross-legged. ये sitting etiquette है, and women sit cross-legged. So these are the kind of personality development traits you should have going forward. तो आपको उस तरह से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा आकृति, and you have to realize it yourself कि आपकी strength क्या है अभी और weakness क्या है। If you're not able to actually directly approach somebody, तो आपको वो करना पड़ेगा, आउट एंड आउट जाके अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अगर आपका काम है तो आपको ही करना है, एंड दैट इज हाउ यू वर्क ऑन इट। यू लिस्ट डाउन इट, बेस्ट है आप लिस्ट करोगे और हो जाएगा बस। Okay, thank you so much, sir. Next question is from Divyanshu Divedi. Please unmute yourself, Divyanshu, and go ahead. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आज का सेशन अच्छा लगा सर। अब मुझे ये पूछना है सर कि आपकी इस होल एज अ जर्नी में आपने कैसे कॉन्फ्लिक्ट को फेसेस किए अपने टाइम पे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्टली सी, इफ आई टॉक अबाउट माय कॉन्फ्लिक्ट्स, तो व्हाइल आई वाज डूइंग माय एमबीए, ठीक है, तो सबको पता है 2 साल का होता है, और जैसे ही मैंने खत्म किया तो ट्राइमेस्टर सिस्टम आ गया, जहाँ पे 1 साल में 3 सेमेस्टर्स होने लगे। आई वाज द लास्ट पर्सन इन माय सर्कल जिसने सेमेस्टर में किया एमबीए, एंड वहां पे आई हैव डन माय इंटर्नशिप, और बैंगलोर था, आई हैव ग्रोन अप हियर, ठीक है। तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एक अगर मैं आपको बात बताऊं, व्हेन यू गो टू साउथ, तो वहां पे सारी कंपनीज बहुत ज्यादा द काइंड ऑफ पीपल यू मीट देयर वहां पे मिलते हैं, एंड वो कॉलेज से लेके आपके इंटर्नशिप्स तक आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे हैव। और यही होगा, डाइवर्सिटी एक टर्म है, जब आप एक कंपनी में जाते हो
तो वहां से कोई तमिलनाडु से भी आ सकता है, कोई पंजाब से भी आ सकता है, कोई गुजरात से भी आ सकता है। और एक कल्चर में एक चीज बहुत ज्यादा ऑफेंसिव मानी जा सकती है और शायद वो आपके कल्चर में ना हो। यूपी में जिस तरह से बात करते हैं लोग, स्पेशली लखनऊ में हम इतनी तहजीब बोलते हैं, बहुत तहजीब से, बहुत वेल स्पोकन है। अगर हरियाणा से कोई मिलेगा, उनकी बोली बहुत खड़ी है, तो वो तो कुछ भी बोलेगा तो आपको बुरा लग जाएगा। सो दोज आर द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यू फेस इन योर एक्चुअली व्हेन डाइवर्सिटी एंड अलग तरह के लोग आपको मिलते हैं, तो वो बहुत होता है। एंड अगर मैं दूसरी बात बताऊं आपको, एक बहुत, ये मैंने बहुत कॉमन एग्जांपल दिया था क्योंकि आई हैव डन 5 इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग माय एमबीए। तो जितनी ज्यादा कंपनीज में आप अलग अलग जाओगे, उतने आपको लोग मिलेंगे और उतने आपके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वर्क कल्चर यहाँ पे, सो इमेजिन मेरे अंडर में लोग हैं, मेरी टीम में है, ठीक है, एंड उनकी 33 इयर्स एज है। देयर इज अ पर्सन हु इज 33 इयर्स ऑफ एज, मुझसे बहुत बड़े हैं, उनका घर पे बेबी भी है एंड ही इज नॉट वेल, ठीक है। अब काम करना है, प्रोजेक्ट भी है, तो उनको आप किस तरह से कन्विंस, डांट नहीं सकते, समझा सकते हो, बात कर सकते हो। तो आपको उनकी प्रायोरिटी भी समझनी है, अपनी प्रायोरिटी भी समझनी है, उनकी बेबी की हेल्थ की भी प्रायोरिटी समझनी है। दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट्स यू फेस दिव्यांश गोइंग फॉरवर्ड व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी। इतनी छोटी छोटी चीजें आएंगी और बहुत सेंसिबिलिटी लगती है उन चीजों को टैकल करने में। तो ये वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स था जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने फेस किए हैं। और अगर आप बात करोगे ओवरऑल, तो वो तो फिर बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते ही रहते हैं। कल भी हुआ है मेरा, तो वो तो बहुत नॉर्मल है कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, किसी को कोई बात आपकी नहीं समझ में आएगी, आप बात करते रहोगे, एंड दैट इज हाउ यू वर्क ऑन इट। बात करके सॉल्व कर सकते हो आप। Thank you so much, sir. The next question is from Divyansh. Please unmute yourself, Divyansh, and ask the question. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Sir, how to avoid short tempering? Means मतलब सामने वाले के बिहेव को समझना, तुरंत गुस्सा ना हो, ये कैसे अवॉइड करें? ठीक है, तो ये आपको है टेम्पर का प्रॉब्लम? यस सर, ये मुझे है प्रॉब्लम। ओके, क्यों आपको लगता है कि आपको टेम्पर का सर होता क्या है कि मतलब आपकी कोई बात नहीं सुनता तो आपको गुस्सा आता है? हाँ सर, ये मेरे साथ होता है। अगर मेरा सामने वाला बात नहीं सुना तो मैं रिएक्ट कर देता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, और बाद में मुझे ही पछतावा होता है। लेकिन मतलब इस चीज को अवॉइड जानता हूँ, लेकिन अवॉइड नहीं हो पाता सर, पता नहीं। ठीक है, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप हमेशा सही हो, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो जब आप हमेशा सही नहीं हो सकते, तो आप सही सामने से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो आपको हमेशा सही मान के चलेगा। ये तो मैच्योरिटी है। आप कितने साल के हो अभी? सर 22। 22, बहुत यंग हो अभी। बहुत आगे आएगा टाइम जहाँ पे आपको बहुत सारी मुश्किल सिचुएशंस हैंडल करनी पड़ेंगी। वहां पे द बेस्ट पॉसिबल, एक्चुअली द फैक्टर इज, जो आपको ड्राइव करेगा इज एम्पैथी। ठीक है, जब आप किसी को रोड पे अगर आप जा रहे हो और कोई बेगर है, ठीक है, जो या ओल्ड है, तो उसको देख के सिंपैथी आती है अंदर से? यस सर, आती है। आती है, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि दिल नहीं है, दिल तो है, और हाँ। लगती है बुरी चीजें, करेक्ट, और गुस्सा भी आता है, बहुत आता है। तो इसी तरह से जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में हो और आप लोगों से डील कर रहे हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी भी एक सिचुएशन है। इसको एम्पैथी बोलते हैं, स्टेपिंग इन समबडीज शूज। तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले को भी आ सकता है ना। तो जब आप सामने वाले की तरफ से चीजें देखने लगोगे, तो आपको अपने आप जो टेम्पर का प्रॉब्लम है वो आपका कम हो जाएगा। यही मैच्योरिटी है। आप सामने वाले की नजर से देखोगे जब चीजें, तो आपको बेहतर दिखेंगी, आपको पिक्चर क्लियर होगा और आपको रिग्रेट कम होगा। ठीक है? Certainly, sir. I agree that empathy will reduce the level of high temper, of course. Yeah, correct. The next question is from Sarthak Singh. You could please unmute yourself, Sarthak. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मेरे आइडियल इलॉन मस्क है, तो मैंने उनके बारे में जब पढ़ा सुना, तो वो बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं। हफ्ते में 100 आवर और 14 आवर्स पर डे वर्क करते हैं वो। तो सर आपने मोटिवेशन की बात भी की थी यहाँ पे, तो सर वो एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता है, वो 1-2 घंटे बाद खत्म हो जाता है, और इंटरनल मोटिवेशन हम लाएं कैसे? और सर इलॉन मस्क सर ऐसा क्या है कि वो इतना ज्यादा वर्क कर लेते हैं? दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी तो है सार्थक। यस सर, और ऐसा क्यों है कि सर इंडिया से कोई नहीं होता, हमेशा फॉरेनर ही वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन होते हैं? इंडिया से भी है, अंबानी जानते हो आप कितना पैसा उनके पास। देखो, that's the game of currency, moreover that's the game of currency. करेक्ट। तो आप रुपी का वैल्यू देखो और डॉलर का वैल्यू देखो, वो चीज है। और दूसरा सार्थक, आई रियली लाइक योर क्वेश्चन
क्योंकि मोटिवेशन तो सबका ही जाता है। देखो आप स्कूल में हो तो आपको नहीं आता पढ़ने का मोटिवेशन कि यार 2 घंटे बाद पढ़ा, और यही होता है ना, आप टाइम टेबल बनाते हो एज अ किड और फिर आप फॉलो नहीं कर पाते हो। समर यस वेकेशन सर। तो सबने बनाया है, तो वो आई अंडरस्टैंड और ये बहुत नॉर्मल है। बट क्या होता है ना कि एक बार अगर आप एक गोल ओरिएंटेड हो कि आपको पता है कि अच्छा आपको इतना परसेंट लाना है और इस कंपनी में काम करना, अगर आप इलॉन मस्क की बात कर रहे हो तो आई एम श्योर आप फिर एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहते होगे अगर आप उनको आइडल मानते हो। यस तो सर, यस सर। ठीक है, तो अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो तो आप उसमें जान भी उतनी ही लगाओगे, जान लगाओगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। तो क्या होता है ना कि बहुत ही इस टाइम पे करेंटली एक हवा फैली हुई है कि बहुत ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार वो आएगा ना, आपकी सैलरी गिरेगी ना पहली, या अगर आपको पहला इन्वेस्टमेंट मिलेगा अपनी कंपनी के लिए, तो आपको समझ में आएगा कि मोटिवेशन क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी भी, अगर आप इलॉन मस्क की बात करते हो, वो इतने 6 घंटे 7 घंटे सोता है गैस दिन में, और वो इतना सो रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसको इतना रेवेन्यू मिल रहा है उठने पे, तो कमा भी तो रहा है वो करोड़ों। तो अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हो तो यू हैव टू फाइंड योर मोटिवेशन। उसका मोटिवेशन आप ये देखो टेक्नोलॉजी है, उसको स्पेस एक्स बनाना था, उसने बनाया। उसने फाइनेंशियल, जितना पेपाल में उसका इन्वेस्टमेंट है हर जगह पे है, और स्पेस एक्स 3-4 बार फेल हुआ है उसके बाद भी वो कर रहा है। तो उसका जो गोल है वो अचीव करता जा रहा है, इसलिए उसको पैसा मिल रहा है। सेल्फ ड्रिवन कार्स उसने बना दी, उसके सर बाद लेकिन जो पैसा। उनका इस स्पेस एक्स में सर फोर्थ लॉन्च था, वो थर्ड फेल हो चुका था, और मैंने सुना कि जब उन्होंने फोर्थ लॉन्च करना था उन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया था। तो सर उतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि हम इंडियंस होते हैं उतना नहीं कर पाते कि हाँ आप लगा दो। उन्होंने सब कुछ छोड़ के फोर्थ लॉन्च पे इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, तो करेज लगेगा ना। देखो आपको यहाँ से दिख रहा है कि उसने सब कुछ छोड़ के इन्वेस्ट कर दिया, बट आपको लगता है कि इलॉन मस्क कितना बेवकूफ होगा कि उसने सब बेच के स्पेस एक्स किया है? नहीं सर। सिंपल है। तो वो देखो, टू गेट इंस्पायर्ड बहुत अच्छी बात है, बट अभी हम जहां से स्टार्ट करें इट्स अ फर्स्ट स्टेप, तो हमें स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह से वो काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5-6 घंटा सो के 17-18 घंटे काम कर सकते हो आपको अपनी कंपनी के लिए, तो जितना आप काम करोगे उतना करोगे। और मैं जानता हूँ लोगों को जो करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ हेल्प नहीं करेगा, आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा, बट आपको गोल पता होना चाहिए आपका। इफ यू नो योर गोल यू विल बी प्रीटी मच मोटिवेटेड टू अचीव इट। तो आप गोल फाइनलाइज करिए अपना, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अचीव इट। ऑल द बेस्ट। थैंक Well यू सर। answered, sir. The next question is from Madhukar. I'll ask him to please unmute himself and go ahead with your question, Madhukar. जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर, बीइंग एन इंजीनियर in a company, what is the need to do MBA degree if we want to progress in the artificial intelligence only? ओके, तो आई डिडंट गेट योर आंसर क्वेश्चन, एक बार आप दोबारा से रिपीट करना चाहेंगे? Sir, being an engineer in a company, हम्म, what is the need to do MBA degree ओके, if we want to progress in the artificial intelligence only? ठीक है। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है अभी बीटेक में? सर AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ही है, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट एआई, तो देखिए अभी आप चाहोगे आप एआई इंजीनियर बनोगे, राइट? एआई सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स होते हैं, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट्स होते हैं, आप जाते हो। जब आप लैडर में ऊपर जाओगे आपका अप्रेजल होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपको टीम मिलेगी हैंडल करने के लिए, करेक्ट? और वो टीम जब आप हैंडल करोगे उसके लिए स्किल्स लगते हैं, और वो मैनेजमेंट है, पीपल मैनेजमेंट, करेक्ट? एंड दैट इज वेयर अ डिग्री लाइक एमबीए कम्स टू प्लेस, जहां पे आप एक्चुअली लर्निंग दोज स्किल्स जो आप मैनेजमेंट में सीखते हो, विच विल ओनली हेल्प यू बैक मोर एंड मोर पैकेज। तो आप ये समझिए कि जब आप एक नौकरी की बात कर रहे हो और कहीं पे अगर आपको 10 लाख रुपए पर आनम मिल रहा है, ठीक है, और आप मैनेज भी कर पा रहे हो अपनी टीम को, आपके अंदर वो भी स्किल है। क्योंकि अगर आपको नहीं आता होगा तो फिर एक दूसरा मैनेजर रखना पड़ेगा जो मैनेज करेगा, और अगर आप वो डिग्री कर लेते हो तो आप खुद ही मैनेज कर लोगे। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप 2 लोगों का काम करो तो 2 लोगों की सैलरी भी तो लोगे। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होगे, आई एम श्योर आप एआई, अगर आप इंटरेस्टेड हो उसमें, तो आप बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते होगे जो 5-5 साल की नौकरी के बाद एआई में कोर्सेज कर रहे हैं। जी सर। 10 साल के बाद। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 20-20 साल से हैं आईटी इंडस्ट्री में, और अब जाके दे आर एक्चुअली परसुइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज, ठीक है, वो भी बड़े बड़े कॉलेजेस से। बट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्यूचर है। लेकिन जो ऑटोमेशन है ना, वो मैनेजमेंट रिप्लाई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता रिप्लेस। तो ऑटोमेशन आपका रोबोट्स ला सकता है, बट मैनेजर्स नहीं ला सकता। मैनेजर्स के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग एमबीए कर रहे हैं, क्योंकि इट हेल्प्स यू, इट एक्चुअली हेल्प्स। सर एक क्वेश्चन और सर। हाँ जी, पूछिए।
सर जैसे ये आपने बताया था कि पॉलिटिक्स होती है कंपनी में, तो वो जैसे अनप्रिडिक्टेबल तो होती होगी सर। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो सर उसके लिए जैसे हम स्टार्टिंग से क्या तैयारी कर सकते हैं? रैपो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे रैपो बनाएं, आप सबसे बात करें। आप ये सोचिए ना कि अगर एक एक ऑफिस में, आपके वर्क स्पेस में 200 लोग हैं और आप खाली 5 लोगों से बात करते हो, तो 195 पीपल यू डू नॉट नो, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो आप वर्क प्लेस में जाके आपको सबसे एक रैपो बनाना पड़ेगा। अब आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, करेक्ट, उसमें से कुछ अच्छे दोस्त होंगे, कुछ ठीक ठाक दोस्त होंगे, आप कुछ होंगे आप जिनको जानते होंगे खाली, है ना। तो जो आपके अच्छे दोस्त होंगे वो आपके बारे में बुरा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो आपको डबल क्रॉस भी नहीं करेंगे। एंड दैट इज हाउ यू बिल्ड अ रेपो। ये भी एक सॉफ्ट स्किल है कि आप किस तरह से काम करके, कम्युनिकेट करके अपने आप को, अगर आप अच्छे से कंडक्ट करते हो तो आपको सब पसंद भी करेंगे, तो आपके साथ पॉलिटिक्स भी नहीं होगा, है ना। क्या I सर? truly agree to your solution, sir, that building rapport is a vital element. Yeah. Next, the question is from Pawan Kumar Singh. Rest all these students will please keep your mics muted. And Pawan, now you could please unmute yourself and ask the question. Good evening, sir. My name is Pawan Kumar Singh and I am from MCA first year student. Sir, actually, sir, हमें पूछना था कि अगर एक अच्छे में जाना हो तो कोडिंग स्किल मतलब कितना मतलब मैटर करता है कि कितने तरह से क्या आपकी लेवल रहना चाहिए कोडिंग वॉइस स्किल का? ब्रेक हो रही है पवन आपकी। Sir is Actually, sir, asking I'm regarding MCA your first. coding skills. Regarding the coding skills. यस Yes, सर, एक sir. अच्छे एमएनसी में जाने के लिए, जॉब पाने के लिए, फिर एक इंटर्नशिप के लिए कोडिंग स्किल सर कितना? ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस डू यू नो ऑलरेडी? आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं अभी? C++. ओके, इसके अलावा? इसके अलावा कोई लैंग्वेज आती है आपको? आप ऑडिबल नहीं पवन। हाँ जी, There's some technical glitch, Pawan. Please, आप चैट में लिख दीजिए अपना क्वेश्चन। yeah, you could please leave your query in the chat box. We'll take the last question of the meet today, and it's from Raj Sharma. Please unmute yourself, Raj. Hello, good evening, sir. Good evening, Raj. And I'm EC student, second year, and currently working as a supervisor in sales company. And now currently मैं फेस कर रहा हूँ कॉलेज सिचुएशन कि कैसे मैनेज करें कॉलेज एंड ऑफिस इन सेमेस्टर टाइम्स। ओके जी सर। तो आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं अभी बता सकते हैं मुझे? कामगारो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गोमती नगर। अच्छा, ठीक है। तो they offered you job while you're pursuing your degree? या वर्क फ्रॉम होम। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम में आप कर रहे हो। सैटरडे एंड फ्राइडे जाना होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब आप जॉब टेकअप कर रहे थे तो आई एम श्योर मतलब आपने सोच के किया होगा, करेक्ट? या ड्यू टू कि आपकी अभी फाइनेंशियल भी चल रही है। स्टेबिलिटी की वजह से। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, एंड वो बिल्कुल ही अच्छी बात, आई रिस्पेक्ट दैट कि आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना चाह रहे हो। बट क्या है ना कि देखिए, अगर आप अभी जो जॉब कर रहे हो और अगर आप डिग्री है, जो डिग्री है वो आपकी पहली प्रायोरिटी है, करेक्ट? तो अगर आप डिग्री कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर वो जॉब जो है इससे बहुत ज्यादा आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो डिग्री होना चाहिए अभी, करेक्ट? और आई अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप कर रहे हो, बट ईदर यू कैन एक्चुअली फाइंड अ जॉब, जैसे जो मेरा है वो यूएस टाइमिंग्स, ठीक है? तो आप बहुत ज्यादा, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, दे ऑल्सो पे वेरी गुड, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप रात का शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? जहां पे प्रोबेबली वर्क टाइमिंग शुड बी 6 PM to 2 PM, 3 AM, 2 AM, इस तरह से होगा। तो आप यूएस शिफ्ट में रह के आप पढ़ाई भी कर सकते हो और आप साथ में जॉब भी कर सकते हो, एंड इट विल आल्सो पे यू बेटर, ठीक है? तो आप इस तरह से इतनी कंपनीज देख सकते हो, आप यूएस बेस्ड कंपनीज देख सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे तो बहुत आ गई हैं, स्पेशली इन द एडटेक सेक्टर। तो आप उस तरह से आप देखिए और आप उस पर भी फोकस कर लोगे, और पढ़ाई हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट आवर गोल इज, करेक्ट? ओके सर, ठीक है। Thank you, sir. You're Please welcome. excuse me. I'll take up one more question, and that is from Akhilesh Singh. Akhilesh, please unmute yourself. Good evening, sir.
Good evening, Akhilesh. Sir, while working on soft skills, there are our certain bad habits which we cannot notice consciously. How Okay. to notice them and improve our soft skills? कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे आप मुझे? अखिलेश, आप म्यूट पे हैं. सर लाइक रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने बताया कि मैं बात करते करते अपने फेस को टच करता हूँ, मुंह को छुपाने जैसी बैड हैबिट्स करता हूँ, तो ये हम लोग खुद से कैसे नोटिस करें? ठीक है, तो देखिए, आप पब्लिक स्पीकिंग में कितना अच्छे हो? आप करते हो? कभी स्टेज पे आपने बोला है? आप प्लेस करा, आपने थिएटर करा है, कुछ करा है? आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं अखिलेश. हाँ जी. सर, अपने स्कूल में ऐसा हेड बॉय मैंने स्पीचेस दिए हैं बहुत सारी. ठीक है, तो स्पीचेस आप किस तरह से प्रिपेयर करते थे? आप शीशे में देख के बोलते थे या आप खुद से मन में रिवाइज करते थे? कैसे, व्हाट वाज योर टेक्निक? शायद कोई टेक्निकल ग्लिच अखिलेश, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूँ खुद से. ठीक है, तो हाउ डू यू नोटिस इट कि जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, जैसे अगर मुझे कोई स्पीच देनी है तो मैं एक बार शीशे में देख के बोलता हूँ, दैट इज व्हाट आई डू पर्सनली. ठीक है, तो वहां पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज नोट करते हो और यू मेक अ लिस्ट कि क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स का. जैसे आई वाज टेलिंग आकृति कि आप स्ट्रेंथ और वीकनेस की लिस्ट बनाते हो, नोट डाउन, मेक इट अ हैबिट कि अगर नहीं करना, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मुंह छूते हो तो मत छुओ. मेक अ लिस्ट ना, कॉन्शियसली करो, अपने अंदर वो इम्बाइब करो, क्योंकि until unless you won't work on it, तो I don't think कोई solution निकल पाएगा उसका. Thank you so much, sir. You're welcome. So next we have Amrit Pathak, and I hope that this is the last question of the session. We have few questions from the YouTube platform also, and they are regarding developing soft skills and how to avoid comfort zone. All those questions are there. So what could be the one unified answer for all these concerns? Listing down, ma'am. I personally feel, see, when you write something, it etches in your mind. अगर मैं आज यहाँ पे लिखता हूँ अपने पेपर पे कि मुझे अपने इंग्लिश पे काम करना है, तो I can actually efficiently work more on it. So आपको कुछ भी है, you list it down. If your strength is interpersonal communication, you write it down. If your weakness is you're an introvert and आपको एक sales job करना है, write it down. And that is how you work on it. जब तक आप खुद को नहीं बताओगे ना कि ये प्रॉब्लम है, so the problem with people is they do not self realize. और सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मुझे लगता है कि मैं स्टेज पे जाके 5000 लोगों के सामने बहुत आसानी से बोल दूंगा विदाउट इवन ट्राइंग, वो एक प्रॉब्लम है. सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने बारे में realize करिए, डाउन करिए. You have a cue, and that can only happen if you can probably list them down one by one. थोड़ा सा ऑर्गेनिक प्रोसेस है, बट बहुत इजी है. Thank you, sir. Amrit is there to ask the question. Yes, Yeah. Amrit. Hello, sir. Hello, everyone. We could not. Good evening. I'm अमृत, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. complication. We could not hear you, Amrit. Yes, you could sir. please leave your query in the chat box. Yes, we have one question regarding Adobe also. Yes, go ahead, Chiranjeev. Sir, I had a question regarding Adobe. जी बताइए, please go ahead. Sir, I was thinking that is Adobe looking forward to implement blockchain in any of their future products? See, as of now, we are focusing on analytics specifically. But when you talk about blockchain, तो blockchain, because बहुत सारे regulations हैं अभी right now,
in the country. तो अलग अलग countries के अलग अलग regulations है and compliance है. So that is a US based, San Jose में उनका headquarter है Adobe का specifically. So they're not right now, they're not looking at it because अभी currently we are focusing on authoring LMS systems, and also I'm sure आप लोग जानते हो Photoshop है, PDFs है. Then that is the major concern right now. And analytics है, because क्या हो गया ना कि big data, primary data बहुत सारा हो गया इस time पे. And to actually resolve that issue, we need specific analytic tools. So currently जो हमारे development है and research है, that is majorly focused on analytics and not blockchain, because blockchain is a whole different industry that needs monetization, that needs capitalization, and that also needs mining, जिसके लिए आपको अलग compliance होता है. So Adobe is a technical software company, तो वो blockchain में currently they're not planning to go on, as long as I know. Okay, thank you, sir. You're welcome. Thank you so much. Students have shared the link of the feedback form for you all to ensure your attendance. Now I would like to wind up the session. I think gratitude is a big thing and puts you in a place where you are humble. Certainly the traits of OB, negotiation, conflict management, relevance of soft skills were well addressed by you, sir. I'm truly grateful for your gracious presence and the rational insights which you just shared with us. I would like to extend a vote of thanks on the behalf of Training and Placement Cell, Faculty of Engineering and Technology, University of Lucknow. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you so much, ma'am, and thank you so much everybody who could actually take out time and I could share my insights with you people. I really liked doing this. And if you have any queries, I'll drop my official email ID with ma'am, and you can reach out to me on that. Yeah. Thank you so much. Now I would like the host to please end the meet. Thank you so much. Thank you.